more than 35,000 square meter of built up area was brought up in 15 days time. India gets almost 11% of the world's cargo traffic. अब कोशिश ये हो रही है कि हम बड़े ships ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बनाएं. We are planning to be 5th largest shipbuilding nation in times to come. So please come to India and invest in India. So don't miss the bus. Thank you so much, sir, for your time today. It's a pleasure to have you in the Global Maritime Summit 2023. Thanks for your time. No, it's my pleasure to be here. Sir, सबसे पहले तो we want to congratulate you. बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया. तो इसके बारे में बताइए कितने समय में कैसे ऑर्गेनाइज किया? How was the experience of making it? This summit was actually planned for Delhi. Okay. But later on, we were requested that it has to happen in a coastal city. Wow. To relate to the because it was maritime a aspect. maritime summit. So then Mumbai was the only big city which can host this kind of a summit at short notice and of that big magnitude. Yes. Plus it is the maritime capital of India. Of course. Because all the big maritime industry, education, training centers, everybody is located out of Mumbai. So you can very well see that the presence of all these stakeholders of maritime has been quite overwhelming at such short notice. It was a nightmare for us to put everything in place because more than 35,000 square meter of built up area was brought up in 15 days time. And it is rare. बहुत मुश्किल रहा होगा but मजा भी आया होगा. And with all facilities. I was very worried whether the chilling plants and the ACs will work and whether we will be able to handle the crowd, whether we will be able to cater to their food requirements. I think everything went smooth. I believe, except for maybe some few minor hiccups, it has passed off. No, it has come out really well. And I think we have so many foreign investors coming in, dignitaries coming in, all the cabinet ministers coming in. So Delhi को Bombay में हमने Delhi का feel दे दिया. That is very true because we were supposed to bring in a big foreign contingent because maritime is a interconnected industry and India gets almost 11% of the world's cargo traffic because we are a big consuming nation because of our population, and that is why a lot of new things that are happening across the globe, those technologies, digitization, the greening efforts and smart port technologies, all we wanted to bring in India. Many of the things were happening, but we wanted more collaborations because the thing is that if we don't efficiently improve our processes, we may fall behind in race. So you're saying technology बहुत important है in the whole बहुत ज़्यादा है because vision that we are setting for 2047 as well. Because most of the ships which are chartered, they are time chartered. That means कि for a particular number of days the ship is chartered. Okay. So any additional hour may cost between $10,000 to $20,000. Oh my God. To the shipper. So when it comes to the port, the ship has to be unloaded, then loaded, and it has to leave. जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से जाना है. उतना जल्दी, उतना efficient होगा, and economy will prosper, and you can get more traffic. तो पोर्ट का operations should be more efficient. प्लस पोर्ट से पोर्ट पर माल आना एंड पोर्ट से माल बाहर जाना, मतलब कनेक्टिविटी टू द पोर्ट्स एंड द हिंटरलैंड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो कैसे इंडस्ट्रीज पोर्ट के पास रहेंगी, रॉ मटेरियल के पास और इंडस्ट्री के पास पोर्ट रहेगा. ऑल दीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू हैव अ एफिशिएंट डिस्पैच ऑफ कार्गो. सर सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कोई तीन चीज़ आप बता सके, जैसे मैरीटाइम स्पेस आपने बोला स्मार्ट पोर्ट दैट रिड्यूसेस द टाइम ऑफ ऑफलोडिंग ऑनलोडिंग, तो और कैसी चीज़ें जो मैरीटाइम स्पेस ये मैरीटाइम सेक्टर को और एफिशिएंट भी बनाए और लोगों के लिए द फर्स्ट चॉइस इट बिकम्स फॉर ट्रेडिंग इवन इन हाउस इनलैंड. सबसे बड़ा इशू मैरीटाइम के लिए है कि
अब शिप्स बड़े होते जा रहे हैं। शिप्स बड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल करने के लिए, क्योंकि अगर आप उतने में ज़्यादा माल ले जाएंगे तो आपको पर टन ऑफ कार्गो कीमत कम आएगी, इन सिंपल टर्म्स। अब जब शिप बड़ा हो रहा है तो बड़ा शिप के लिए गहरा पानी चाहिए, यू नीड अ डीपर ड्राफ्ट प्लेस फॉर दैट शिप टू मूव। तो उसके लिए पोर्ट के पास पानी होना, डीप पानी होना ज़्यादा जरूरी है। और अदरवाइज उनको कैसे डीप करना है, जिसको ड्रिजिंग बोलते हैं, तो उसका ड्राफ्ट बढ़ाने का काम होता है। वैसे ही अगर हमें हिंटरलैंड में ज़्यादा गुड्स ले जाने हैं, ट्रांसपोर्ट करने हैं पानी के जरिए, तो उसके लिए इनलैंड वाटरवेज को ड्रेज करना है, वाटरवेज नेविगेबल करने हैं। 2014 में हमारे बहुत थोड़े से वाटरवेज नेविगेबल थे और 116 वाटरवेज को लिया गया है जिनको नेशनल वाटरवेज की संज्ञा दी गई है, और उसमें 26 वाटरवेज के लिए बोला गया है कि हम इनको पूरी तरह से नेविगेबल करेंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 116 वाटरवेज को नेविगेबल बनाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स को ले जाने के लिए। तो जिससे कि कोस्टल ट्रैफिक जो है पानी के जरिए वो ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। वाई पानी के जरिए? बिकॉज आपको पानी के जरिए आप जब कार्गो लेकर जाते हैं तो आप रेलवे से करीब 40% सस्ते में ले जाते हैं और टाइम भी कम लगता है। और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा कार्गो है जिसको टाइम डिपेंडेंट नहीं है, 2 दिन एक्स्ट्रा भी लगे तो आप ले जा सकते हैं, तो वाटर विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव प्लस एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उतने कम होते हैं कंपेयर टू रेल एज वेल एज रोड में सबसे ज़्यादा GHG एमिशंस होता है। और इसलिए आप देखेंगे जो वो देश हैं यूरोप, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जा रही है कि पानी के जरिए गुड्स को ले जाएं। उसके लिए अपनी पॉलिसी भी चेंज करते रहते हैं। यस, तो वहाँ पर तो ऐसा भी है कि जो पैसेंजर जाते हैं, पैसेंजर फेरी अब चलते लगे हैं, क्योंकि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना है, शहर से दूसरी जगह जाना है, शहर को क्रॉस करना है, तो वहाँ लोग प्रेफर करते हैं अब हम इलेक्ट्रिक फेरी में बैठेंगे, जिससे कि हमें किसी भी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं करनी है। और लोग उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देने को तैयार हैं कि अगर मेरे को 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। It's a responsible effort. So these are sustainability and responsibility efforts that are going on, और हमें भी इनको धीरे धीरे अडॉप्ट करना चाहिए। So by making the technology there, smart port, you think people will now start opting for this way of transport? हमें उनको ऑप्शन तो ये देना पड़ेगा कि efficiently, because goods का transportation efficiently हो और थोड़ा cost effective भी हो। If we do both the things, then only people will prefer this. Otherwise, the alternate rail and road are always available. एंड शिपिंग क्या है, बहुत इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सेक्टर, बिकॉज आपने ट्रक के ड्राइवर को ट्रेन करना है, आप 2-4 महीने में ट्रेन कर सकते हो। अगर शिप के एक पायलट को ट्रेन करना है और सी फेयर को ट्रेन करना है तो 2-3-4 साल लगते हैं। प्लस शिप का इन्वेस्टमेंट बड़ा है, ट्रक का इन्वेस्टमेंट कम है। ट्रक इजिली दूसरे को बेची जा सकती है, शिप दूसरे को बेची नहीं जा सकती। तो सबसे टफ सेक्टर है, बट इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस सबसे ज्यादा है। पर ये सबसे नीश नहीं है ना सर, जैसे हम एयरलाइन में जाने के टाइम पे नीश मानते थे, तो आई होप इन ट्रेडिंग एंड गुड्स एंड कमोडिटी मूवमेंट इट्स नॉट जस्ट द नीश एरिया जो सब सोचे हमारे। एक्चुअली एज अ कॉमन मैन हमें लगता है कि ये शायद ये क्या होता है, हमारे घर पे माल कैसे आता है, बट अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखें तो 90% गुड्स बाय वॉल्यूम दे कम इनटू आवर कंट्री or go out of our country only by water route, only by sea route, because आप इतने बड़े goods आप कैसे ला सकते हैं। तो ये आता पानी के जरिए ही है सारा। बाद में यस, अभी हमारा कोस्टल मोड से ट्रांसपोर्ट जो है वो कम है इंडिया में, हम 2 से 3% कम कर पाते हैं। हमें 2047 तक 12% कोस्टल रूट से हमारे को कार्गो ट्रांसपोर्ट करने का प्लान है हमारा, उस दिशा में मिनिस्ट्री कार्यरत है। बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कनेक्टिविटी जो करनी है पोर्ट्स के साथ, और जगह जगह पोर्ट के पास ही हमारे को कंज्यूमिंग सेंटर्स बनाने हैं कि हम जिससे कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो, बड़े बड़े वेयर हाउस बन जाए, इंडस्ट्रियल सेंटर्स वहीं पर आएँ और वहीं पर पैकेजिंग रीपैकेजिंग हो जाए,
जिससे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाए. बिल्कुल. So it's a collective measure to bring down the cost, make connectivity better, Yes. and also make your waterways बिल्कुल. quicker to connect. But coming to your MOUs, अब इस ग्लोबल मैरीटाइम समिट में सर इतना सुंदर ऑर्गेनाइज करके आप लोगों ने काफ़ी MOUs साइन किए, तो उस पर एक थोड़ा सा आप हमें जस्ट लेट अस अ ग्लिम्स इनटू इट कि ये MOUs किस तरह के आपने साइन किए और कौन से प्रोग्रेसिव वे से आगे जाके इम्प्लीमेंट हो जाए. MOU कोशिश ये करी गई है कि वही वाले साइन किए जाएं जो बाद में वर्केबल होंगे एंड दे विल रियली सी द लाइट ऑफ द डे. जस्ट लाइक समबडी टोल्ड मी कि ये कोर्टशिप पीरियड होता है, फिर रिश्ता बन जाए इसी का. सही है, बिकॉज जो भी MOU हुए हैं इस पर काम काफ़ी महीनों से हो रहा था एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड MOUs हैं कि नए पोर्ट बनेंगे, न्यू टर्मिनल्स विल कम अप इन द पोर्ट, न्यू जेट्टीज विल कम अप इन द पोर्ट. पोर्ट में नए तरीके का मैकेनाइजेशन होगा, न्यू मैकेनाइजेशन विल हैपन नाउ बिकॉज एफिशिएंट कार्गो डिस्पोजल के लिए पोर्ट मैकेनाइजेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो पोर्ट मैकेनाइजेशन रिलेटेड बहुत सारे MOUs हैं, पोर्ट कनेक्टिविटी रिलेटेड MOUs हैं. देन पोर्ट में डिफरेंट डिजिटाइज टेक्नोलॉजीज़ को लाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स जो पोर्ट्स में यूज़ होती हैं, उन वेसल्स नई तरीके की होती जा रही हैं. जैसे पहले सिर्फ डीजल फ्यूल या फर्नेस ऑयल पे वेसल्स चलते थे, अब वेसल्स कैसे हाइब्रिड फ्यूल पे चलेंगे, बैटरी ऑपरेटेड होंगे क्या, शॉर्ट सी जर्नीज जो हमें छोटी जर्नीज करनी हैं वो हम नॉर्मल फ्यूल के बजाय बैटरी या इवन हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन अमोनिया की बात हो रही है, इस पे कैसे जाएंगे. फिर इन वेसल्स को बनाना, इंडिया किसी ज़माने में इंडिया सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग नेशन हुआ करता था. कल पता चला हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है. यस. एंड वी हैव हैड द लेगेसी ऑफ मेकिंग द बिगेस्ट शिप्स. तो अब कोशिश ये हो रही है कि हम बड़े शिप्स ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बनाएं, क्योंकि दुनिया जब ग्रीन शिप्स के ऊपर जा रही है तो पुराने शिप्स का डिसमेंटलिंग बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है. सो न्यू शिप्स विल कम इन अ लॉन्ग वे. तो इन नंबर्स को केटर करने के लिए ओनली चाइना एंड कोरिया आर नॉट सफिशिएंट, विच आर द मेजर शिप बिल्डिंग नेशंस इंक्लूडिंग जापान. So India has a big space to fill, can pick up, and we are planning to be the 5th largest shipbuilding nation in times to come. Similarly, lot of these ships will be recycled because and India is the second largest ship recycler. We want to take the number 1 position. Many of our ship breaking yards are becoming Hong Kong Convention and European Union compliant. So there are lots of MOUs based on this. India is a big seafaring producing nation. Almost 260,000 active seafarers on the seas are from India. Almost 12% of the seafarer community we are catering. So skilling institutes are very big in India. इनको ज़्यादा बढ़ाना, तो इसके MOUs, इससे रिलेटेड MOUs बहुत हुए हैं. देन मैरीटाइम सेफ्टी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है. सो ऑल गैमट ऑफ मैरीटाइम हैज कम टुगेदर व्हेन वी आर लुकिंग एट इंटरलिंकेजेस विद द ग्लोबल वर्ल्ड in form of these MOUs. No doubt the third edition turned out to be spectacular. Yes. In folds it has increased. But sir, एक आखिरी question, पहले तो congratulations on 150. Thank you. I want to know from you, how do you look at this celebratory moment in your life? 150 years Mumbai Port, you guys have released your stamp, I believe. Yeah. तो हमें एक किस्सा आप जरूर बताइए इसके बारे में कि हम 150 साल की लेगेसी को लेके चल रहे, तो how is it? नहीं, मुंबई पोर्ट एक्चुअली जब ये बना था 1873 में, उस समय मुंबई पोर्ट और लंदन पोर्ट इंडिया वर्ल्ड के 2 ही सबसे डीप ड्राफ्ट पोर्ट थे. तो वर्ल्ड का बहुत बड़ा ट्रेड, बड़े शिप्स का, उस जमाने के बड़े शिप्स, दे यूज्ड टू प्लाई बिटवीन मुंबई एंड लंदन. दैट वाज द सिचुएशन एंड दैट टाइम cotton used to be a very big commodity that was traded, and that is why a lot of cotton spinning mills and textile mills came up in Mumbai. Oh, that is the history why it was easy. रेलवे लाया गया. There used to be a railway station at Mumbai port. Wow. और जो डायरेक्ट पेशावर तक कनेक्टेड था, और ईस्ट कोस्ट पे कोलकाता. Goods and cargo movement. Goods and cargo movement and mail movement. मतलब वहाँ से काफ़ी मेल भी उस समय शिप के जरिए आता था और फिर ट्रेन के थ्रू जाता था.
हमने ये तो कभी नहीं सुना कि इसीलिए शिप के जरिए उन में। ट्रेनों का नाम मेल ट्रेन हुआ करता था. दैट वाज द लॉजिक. और हमारे पास मुंबई पोर्ट में एक्चुअली एक टनल है. तो उस समय में करेंसी इंडिया में नहीं छपती थी, अच्छा, तो वो इंग्लैंड से छप के आती थी शिप के जरिए. और उस टनल के जरिए वो करेंसी शिप से उतारी जाती थी. और टनल के जरिए जो ग्रैंड पोस्ट ऑफिस है हमारा मुंबई का, उसके बेसमेंट में एक ट्रेजरी बनी हुई है. उस ट्रेजरी से वो टनल कनेक्टेड है. और ऐसे करेंसी उस टनल में से ले जाकर वहाँ की ट्रेजरी में रखी जाती थी. इट वाज अ लॉन्ग टास्क टू गेट द करेंसी इन प्लेस. इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स भी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी ब्रिटेन से आते थे शिप के जरिए. कैसे हो सकता तो वो जो तो वो महीने में एक बार. अच्छा, तो कॉटन ट्रेड की बोली अगर बोलनी है किसी को, तो उस न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन के जरिए बोली जाती थी. तो वेट करते थे. तो जो ट्रेडर्स छोटे शिप में भेज के वो न्यूज़पेपर पहले पकड़ लाते थे, वो बोली बोल के उस समय जो कॉटन की ट्रेडिंग, एक अलग तरीके का सारा जमाना चला करता था उस समय. हमारे पोर्ट पे बहुत लकड़ी आती थी, टिम्बर आती थी. उसके लिए एलिफेंट्स तक हमारे पोर्ट पे काम करते थे. तो उन एलिफेंट्स को यूज करा जाता था टिम्बर उठाने के लिए, ढोने के लिए, करने के लिए. किस तरह से, जब मैकेनाइजेशन तो था नहीं, तो सिर्फ आदमी ही लगते थे पोर्ट पर. तो उनकी मतलब आदमियों के जरिए ही सारा माल ढोया जाता था. तो बहुत मजबूत लोगों का अपॉइंटमेंट होता था. तो मेरे को बताया गया कि कैसे अपॉइंट होते थे लेबर, बिकॉज रोज लेबर लग रहे हैं, रोज लेबर जा रहे हैं. तो उनका अपॉइंटमेंट का तरीका होता था, एक न्यूट्रल टीम होती थी 5 लोगों की, और वो लेबर को बोलती थी आप 100 किलो का बोरा भरा हुआ माल का उठाइए और आपकी बॉडी को टच नहीं होना चाहिए. और जो वो उठा लेता था उस बोरे को बिना टच किए उसका सिलेक्शन हो जाता था. बॉडी को टच क्यों नहीं होना? मतलब अगर आपको बॉडी का टच हो गया, आप में मजबूती कम है, आपकी मजबूती कम है, lift it without touching any part of your body. So once I think some particular labor came for this bharti, and he was very strong pahalwan, a wrestler. So he took the bag and he lifted above his head and then put it down. So he was disqualified. So why he was disqualified? Because he was not following discipline and orders. The orders were only like this. So those were the times. So you're making like how people were selected. So it was a different, almost 55,000 people used to work for Mumbai Port directly under musters of Mumbai Port, and more than 1.5 lakh people were working. So it was a rich legacy that we Rich had. legacy. It was a big, very, very big port that used to cater to maximum cargo traffic of the country. We are now, because since it has become a city-based port, the city has developed all around it. So there are problems of evacuation of cargo. So container cargo has shifted to JN Port, which was built by Mumbai Port. So it has become a pure cargo container cargo port. Our port has now become a more liquid terminal because 2 oil refineries are in Mumbai, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum. We cater to their requirements of crude oil and chemicals. Then we are a big port for handling bulk materials like cement, steel, fertilizers, food grains. Then lot of cars which are automobiles which are manufactured in and around Mumbai, Pune, Aurangabad, in these areas. So some other like Maruti Suzuki also send some cars which are made in Haryana, Manesar. And they are offloaded. They go to various parts of the world from our port. So it's a big automobile export port as well. Plus we are a very, very major cruise hub of the country. We are building the largest cruise terminal of India of built up area of 450,000 square feet, and it will cater to more than 10 lakh tourists per annum and can handle up to 10,000 cruise tourists in a day. Back to the legacy richness. So but it will carve a different place, and it is a big passenger hub as well. Lot of short sea trips ships move in and out of Mumbai port. Plus we have 2 fishing harbours which very few people know, called Sassoon Dock and Bhaucha Dhakka, the ferry wharf, where more than 2,000 shipping trawlers come and use services from the port. And now we are building a new fish jetty because the number of fishing trawlers have increased. Mumbai has a big fish auction place.
So even So there's a mandi. even fish come from Chennai and other places because they get very good price in Mumbai. Oh my god. So we have all it is a multi-purpose port, sans container. All other things are available here, and it will then develop its legacy into a big maritime and cruise tourism. Earlier, most of the movies where smuggling used to be shown, those all movies used to be shot at Mumbai port, and now also several movies get shot here, and it's an ongoing process. Your message to the audience today after the Global Maritime Summit success, a whole great effort team led to this making of the grand success. So what is your message for people for this third edition which you guys have brought to That a grand closure? India has now opened its doors to a gamut of opportunities, and one should not miss the bus. The first mover advantage is always long lasting, so we are going to have 4 to 6 time cargo increase by 2047. So there is a huge growth happening in maritime sector and continue to grow more. So please come to India and invest in India and see what India is with its changing policies and procedures. We are more encouraging, and all procedures, hassle-free procedures we are making. Digitization is happening, so don't miss the bus.